Now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. और हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। ठीक है, उम्र तो चलो बढ़ती रहेगी, है ना, उम्र तो बढ़ती रहेगी। आज 40 के हो, कल 41 के होगे, फिर अगले साल 42 के हो, फिर 43 के होगे। इट रियली डजंट मैटर। एज लिटरली इज जस्ट अ नंबर। I see most of the mothers and fathers way more healthier than their children. Believe me, 95% टाइम्स माँ बाप जो यहाँ पर हैं वो अपने बच्चों से ज्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है, so which means age is just a number. And let us learn more about it from Dr. Joseph Murphy's Intellect and Wisdom. And Anisha is reading for us. So that's the name I've heard for the first time. Anisha, are you there on the phone? Yes. Can you hear me? Yeah, absolutely. Hi, good And morning. this is your debut? Yes, it is. I've just joined. Congratulations. I'm super Thank happy you. to have so many new readers and please read more people जो अभी नहीं पढ़े हैं। आप ये मत सोचो कि YouTube पे स्ट्रीम होता है हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। Please fill in your names. Would love to. Yes, Anisha, let's start. Yes. Okay, thank you. Good morning to you and good morning to everyone else. Chapter 20, How to Stay Young in Spirit Forever. Your subconscious mind never grows old. It is timeless, ageless, and endless. It is a part of the universal mind of God, which was never born and it will never die. Fatigue or old age cannot be predicted on any spiritual quality or power. Patience, kindness, veracity, humility, goodwill, peace, harmony, and brotherly love are attributes and qualities which never grow old. If you continue to generate these qualities here on this plane of life, you will always remain young in spirit. I remember reading an article in one of our magazines some years ago, which stated that a group of eminent medical men at the D. Corsi Clinic in Cincinnati, Ohio, reported that years alone are not responsible for bringing out degenerative disorders. These same physicians stated that it is the fear of time, not time itself, that has a harmful aging effect on our minds and bodies, and that the neurotic fear of the effects of time may well be the cause of premature aging. During the many years of my public life, I have had occasion to study the biographies of the famous men and women who have continued their productive activities into the years well beyond the normal span of life. Some of them achieved their greatness in old age. At the same time, it has been my privilege to meet and know countless individuals of no prominence who, in their lesser sphere, belonged to those hardy mortals who have proved that old age of itself does not destroy the creative powers of the mind and body. Yeah, so ये बहुत empowering चीज है for everybody who is over 40 years of age. जब हमने सुना था कि उम्र बढ़ने लग जाती है and you start getting degeneration and all of that, ऐसा कुछ नहीं होता. So Dr. Joseph Murphy rubbishes all those things जो theories थी that उम्र बढ़ती है. That's why हम लोग के फील्ड में जब हम आपके टेस्ट भी करते हैं ना तो उसमें आपकी दो उम्र आती है। एक आपकी एक्चुअल एज है जो आपको फीड करनी पड़ती है मशीन में। सो सपोज इफ यू आर 62 years old तो 62 आप फीड करोगे, लेकिन मशीन आप हमको रिपोर्ट में दूसरी एज आपकी बताती है कि आपकी बॉडी अंदर से कैसी है। विच मीन्स एंड हम बिल्कुल इनटू अकाउंट वो वाली रिपोर्ट नहीं लेते हैं कि आपकी अगर 62 एज है। हमको व्हाट मैटर्स टू अस इज दैट आपकी फिजियोलॉजिकल एज क्या आ रही है, अंदर से आप कितने उम्र के हो, आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके सिस्टम्स, आपका ब्रेन सेल्स, है ना। सो इसीलिए इसमें बहुत क्लियरली है। अगर आप Mr. Khushwant Singh, he has passed away at the age of 99. He was a writer, author. So उन्होंने बहुत सारे बुक्स ऑथर किए थे। उसमें से आप उनका देखना, जब उन्होंने जो किताबें 80 साल के बाद लिखी है, आफ्टर द एज ऑफ 80, when people mostly think that your neurons degenerate, आपकी याददाश्त चली जाती है, your memory lapses and this and that or whatever, पार्किंसंस होने का चांसेस है, या न्यूरोलॉजिकल बहुत ज्यादा एमनीजिया हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। कुछ नहीं, आप उनका देखना, उनका बेस्ट वर्क तब लिखा हुआ है, isn't it? People जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जिनको पता है डॉक्टर दाई साकुई केदा के बारे में,
he also passed away at the age of 92 or 94, something like that. आपने उनका काम देखा है. हम इस उम्र में उस तरह से रीड भी नहीं कर पाते जिस हिसाब से वो लिखते रहे हैं ऑल हिज लाइफ, यू नो. सो उनका भी काम जो उन्होंने 85 इयर्स के बाद किया है, एक दिन में मल्टीपल न्यूज़लेटर्स लगातार ईमेल पे आते रहते हैं, है ना. उनके आर्टिकल्स आते रहते थे, उनके मैसेजेस आते रहते हैं. सो ऑल दीज पीपल न्यूरोलॉजिकली उन्होंने अपनी पूरी उम्र को मतलब जो उनका एजिंग था उस प्रोसेस को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एंड दे बिकेम मेंटली सो यंग. सो इसमें यही लिखा हुआ है अभी इंट्रोडक्शन में, वरी, फियर, एंजाइटी, ऑल दीज थिंग्स आपको डिजेनरेट करती हैं. और गुडविल, हार्मनी, ग्रैटिट्यूड, लव, ऑल पीस, ऑल दीज थिंग्स आपको यंग बनाए रखती हैं दिमाग में, बिकॉज अगेन आपके सेल्स उस हिसाब से हेल्दी रहते हैं. और हमने उसमें प्रीटी मच आज बुक 1 में भी ये पढ़ा है. सो जस्ट रीड मोर. He had grown old in his thought life. A few years ago, I called an old friend in London, England. He was over 80 years of age, very ill, and obviously was yielding to his advancing years. Our conversation revealed his physical weakness, his sense of frustration, and a general deterioration almost approaching lifelessness. His cry was that he was useless and that no one wanted him. With an expression of hopelessness, he betrayed his false philosophy. We are born, grow up, become old, good for nothing, and that's the end. This mental attitude of futility and worthlessness was the chief reason for his sickness. He was looking forward only to sentence, and after that, nothing. Indeed, he had grown old in his thought life, and his subconscious mind brought about all the evidence of his habitual thinking. तो जो चीज की आप हैबिट बना लोगे वही होता है जिंदगी में, बिकॉज हैबिट मीन्स दैट वो चीज अब सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन होके सीमेंट हो गई है. और नाउ यू विल सी इट इन योर एक्चुअल रियलिटी, है ना. हकीकत में देखोगे कोई भी चीज रिपीट करते हो दैट बिकम्स अ हैबिट. इन जेंटलमैन का ये था जिनके बाद उनका एक एक्सपीरियंस है, तो उसमें इसका टॉपिक है दैट वो अपने दिमाग में ओल्ड हो गए थे. मतलब दिमाग में पूरे टाइम बोलते थे मेरी ओल्ड एज आ रही है और यही तो उम्र है. उनका उनका कांस्टेंट थॉट प्रोसेस ये था, इंसान की क्या लाइफ होती है, वो पैदा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, एडल्टहुड में आता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो गुड फॉर नथिंग होता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है. तो उनकी लाइफ में कोई स्टिमुलेशन, हैप्पीनेस, लव, जॉय, ब्लिस, ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं था. और इसके कारण उनकी जिंदगी में, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये था, है ना, लगातार वो उनकी सेल्फ टॉक भी ऐसी थी, तो वो यही बोलते रहते थे कि मतलब मेंटल एटीट्यूड ऑफ फ्यूटिलिटी एंड वर्थलेसनेस. उनको अपने आप को बोलते थे उम्र के एक उम्र हो जाती है उसके बाद आप वर्थलेस हो जाते हो, आप कुछ काम नहीं कर पाते, है ना. जब आप बूढ़े हो जाते हो आप कोई काम नहीं कर पाते. वो बोल बोल के उन्होंने अपने आप को ओल्ड एज इनवाइट कर ली थी. एंड ही वॉज सिक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ओल्ड एज में, है ना. सो दैट वे, तो इसमें यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं दैट ही हैड ग्रोन ओल्ड इन हिज माइंड. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम सबको पता है, बहुत बहुत सारे हमारे पास लोग हैं. हमने अभी सुभाषी अंकल का एग्जाम्पल देखा था, उन्होंने अपने हेल्थ का कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था. ही रिकवर्ड, he did not think once that my age is this and I can't, my body cannot recover. उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस से, अपने मेंटल एटीट्यूड से, और बोल बोल के एवरी नर्व, एवरी फाइबर ऑफ माय बीइंग, एवरी सेल ऑफ माय बीइंग, एवरी नर्व, सेल, फाइबर ऑफ माय बीइंग इज होल, हील्ड एंड कंप्लीट. आई रिकवर लाइक अ मिरेकल. और ये आप अपने आप को लगातार बोलोगे, सो नाउ दिस विल कम टू पास, दिस विल कम ट्रू, राइट. बिकॉज सबकॉन्शियस में जो हैबिट फॉर्मेशन आप करते हो वो रिपीटेशन से करते हो. या Age is the dawn of wisdom. Unfortunately, many people have the same attitude as this unhappy man. They are afraid of what the term old age, the end and extinction, which really means that they are afraid of life. Yet, life is endless. Age is not the flight of years, but the dawn of wisdom. Wisdom is an awareness of the tremendous spiritual powers in your subconscious mind and the knowledge of how to apply these powers to lead a full and happy life. Get it out of your head once and for all.
that 65, 75, or 85 years of age is synonymous with the end for you or anybody else. It can be the beginning of a glorious, fruitful, active, and the most productive life pattern, better than you have ever experienced. Believe this, expect it, and your subconscious will bring it to pass. Yeah. So, Anisha, we'll be reading only so much today. Thank you for your beautiful voice and your flawless, confident reading. Thank you. Thank you And so please read much. more. Thank you. सो ये वाला जो टॉपिक है इसमें बताया हुआ है कि लोग डरते हैं मतलब उनको लगता है ओल्ड एज से डरते हैं, है ना? तो वो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे कि बस ओल्ड एज ना आए, और उनको एक वो फेयर रहता है सब चले जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे. बट एक्चुअली अगर आप ये बोलोगे दैट दिस इज द गोल्डन एज ऑफ माई लाइफ वेर आई एम एंजॉइंग द मोस्ट, और आपका सेल्फ टॉक ये होना चाहिए दैट हम सब जो जितना अभी इंजॉय करें क्या हमने पहले किया नहीं. My this age, every year is unfolding into more goodness in every way, है ना? नॉट जस्ट मतलब मेरे पास आज जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं थी 4 साल पहले या 10 साल पहले या जब मैं 25 साल की भी थी. टुडे माई एनर्जी इज मोर, है ना? आज मैं मिरेकल की तरह हील करती हूँ अगर कुछ हो भी जाता है. एक तो वो थैंक यू जो मॉर्निंग का एफर्मेशन हम करते हैं, प्रेयर, थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी. मैं इतना स्ट्रांगली उसको होते हुए देख रही हूँ कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो भी जाता है समथिंग विच इज, एंड देन बाय मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप एवरीथिंग इज गॉन, है ना? देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे शाम को ऐसा फीवर लगा है और कोल्ड एंड कॉफ एंड ऑल दैट. इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप इट्स गॉन बिकॉज वो हार्ड वायर हो गई ये चीज. थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ, वही उन्होंने लिखा है ना, हैबिट फॉर्मेशन हो गया है. थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी. अब बॉडी के पास ऑप्शन ही नहीं है, इट हैज टू बिहेव स्ट्रांग ओनली, इट डजंट हैव अ चॉइस, राइट? एंड थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ, like full of energy, full of well-being, that way. तो लगातार कोई भी अगर हैबिट फॉर्मेशन हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है उसको हमको बहुत माइंडफुल होने की जरूरत है. इसीलिए थॉट प्रोसेस में हमको ये बोलना पड़ेगा लगातार व्हाट यू वांट, दैट माय एज आई एम एजिंग आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर, एंड आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. आप लगातार चैंट करो इसको that as my age with aging, I'm getting better and better. I'm getting stronger and stronger. I'm getting healthier and healthier, right? And I'm getting happier and happier. So that means physical, mental, emotional health आपने सब कुछ address कर दिया. और लगातार ये बोलना है, right? That I choose to be healthy. I choose to be healthy. Subconscious mind के एमेगडाला को शेक करने की जरूरत होती है रेपिटेशन के कारण. ये एक पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जिसमें हमारे थोड़े से नॉट आउट से नेगेटिव बट हाँ प्री फॉर्म्ड पैटर्न्स हैं जो हमने शायद कहीं से सुने या सीखे कि उम्र बढ़ने के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है. सो यू नो लाइक इट इज टोटली योर थॉट जो आप अपने अपने ब्रेन में डाल रहे हो और उसको सॉलिडिफाई कर रहे हो लगातार कह के कि दिस इज माय गोल्डन एरा, माय गोल्डन टाइम हैज बिगन. मेरा सुनहरा वक्त जिंदगी का शुरू हो चुका है और हर दिन मेरा और बेहतर होता जाएगा. मेरी हेल्थ, मेरा सब कुछ विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. सो इसीलिए मैंने ये मार्क किया था, गेट इट आउट ऑफ योर हेड वंस एंड फॉर ऑल. अपने दिमाग से आज के लिए और हमेशा के लिए परमानेंटली निकाल दो दैट 65, 75, 80 ईयर्स जो एज होती है ये आपके एंड एरा ऑफ योर लाइफ है ना? सो रादर डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं इट कैन बी द बिगनिंग, मतलब आपकी जिंदगी की शुरुआत हो सकती है. हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है हम सबकी जिंदगी का एक वर्जन 1.0 था और अब वर्जन 2.0 चल रहा है, isn't it? And I can say with confidence that मेरा तो ये वर्जन 2.0 चल रहा है. मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो वाला पिछला जन्म था जो पहले वाला था जब हम विक्टिम थे, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते थे, ये उपाय बता दो वो उपाय बता दो. अब जरूरत ही नहीं है सब उपाय अंदर ही है ना? इतनी ज्यादा पावर आ गई तो हम सब वर्जन 2 में अभी जी रहे हैं. सो इट सेज दैट ये वाला जो एरा है हमारा जो आगे आने वाले साल हैं इट कैन बी द बिगनिंग ऑफ अ ग्लोरियस, फ्रूटफुल, active and most productive life pattern. ये affirmation भी हो सकती है ना हमारी. Thank you universe for my glorious,
fruitful, active and most productive life. Isn't it? कितने अच्छे शब्द हैं, और ये शब्दों के साथ इनके साथ एक एनर्जी आ रही है which are vibrating at a certain frequency. That frequency will heal you. That frequency will create reality. है ना? मतलब एक ब्लैंक कैनवस पे हम ये पेंट कर रहे हैं 4 शब्द. That thank you universe for my glorious, fruitful, active and most productive. Fruitful का मतलब हमको इसके फल भी मिल रहे हैं, है ना? In terms of money, in terms of opportunities, in terms of anything. We don't know how universe rewards us. बट ग्लोरियस मतलब बहुत मजेदार, फ्रूटफुल मतलब हमको इसका फल मिल रहा है, एक्टिव मतलब आप पूरे टाइम फुल ऑफ एनर्जी रहते हो, एंड मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे प्रोडक्टिव वक्त है आपका ओल्ड एज. एज जैसे जैसे आप एज, आई मीन लेट्स नॉट कॉल इट ओल्ड एज, राइट, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक एन ओल्ड एज और अ न्यू एज और समथिंग, राइट. वो इंसान जो 3rd फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के चला जाता है वो मेरे ख्याल से यंग होता है. वो इंसान जिसको हमेशा, सो इट इज हमारे हाथ में है हमको अपनी एज कैसी बनानी है हमारे साथ. सो इसीलिए उन्होंने बोला है बाद में, बिलीव दिस, मतलब इस पे विश्वास करो, एक्सपेक्ट इट, इसकी उम्मीद करो, एंड योर सबकॉन्शियस विल ब्रिंग इट टू पास, और आपका सबकॉन्शियस आपकी हकीकत में बदल देगा. बिलीव इट एंड एक्सपेक्ट इट, बिलीव इट एंड एक्सपेक्ट इट, एक्सपेक्ट दैट मेरा ग्लोरियस वक्त आता जा रहा है एंड आई एम रियली लविंग. और कभी ये मत सोचो दैट यू नो देर आर सो मेनी पीपल, वी वर ऑल्सो टॉकिंग, जो ऐसी बात करते हैं दैट आई वांट टू कीप अ नर्स फॉर माय ओल्ड एज, और मैं ये पैसे बचा रही हूँ या बचा रहा हूँ सो दैट मुझे एक अटेंडेंट रखने को मिलेगा क्योंकि मेरी उम्र बढ़ जाएगी, है ना? ऐसा भी सोचते हैं लोग. कैन यू बिलीव इट? उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अपनी ओल्ड एज में अटेंडेंट और नर्स की जरूरत पड़ेगी. ये मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ क्या? आप अपनी उम्र में आप नेगेटिव चीजें, इंस्टेड ऑफ दिस देयर आर सो मेनी पीपल जो बोलते हैं दैट आई विल डाई हंसते खेलते, यू नो, मुझे पता भी नहीं लगेगा व्हेन आई गो फ्रॉम दिस प्लैनेट or when I take a transition. It will be in the flick of a second, but I will enjoy till the last breath of my life. This is what has to be a thought pattern. That मैं अपने आखिरी दम तक I will enjoy my life to the fullest and I will enjoy my health. Yeah. So that is all we have. Thank you so much.